ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معیشت کو بہتر بنانے کا مینڈیٹ ملا ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہم بھرپور کام کریں گے. عہدہ سنبھالتے ہی وزیر اعظم کی زیر صدارت معیشت کی بحالی سے متعلق اجلاس. سیکرٹری خزانہ کی معاشی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم کی معیشت کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لاہے عمل تیار کرنے کی ہدایت. کہا کاروباری برادری کو سہولتیں دینے کے لیے بھرپور کام کریں گے. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر نے 65 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ کلیئر کر دیے ہیں. ایکسیڈنٹل فنڈ فیسلٹیز سے متعلق آئی ایم ایف سے گفتگو آگے بڑھانے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا برآمدات میں اضافے کے لیے کام کرنے والے سروں کا تاج ہے. اچھے ٹیکس پیئر کی حکومتی سطح پر پذیرائی ہوگی. ایف بی آر میں شفافیت لانے کے لیے آٹومیشن ناگزیر ہے. ایف بی آر اور دیگر اداروں کی آٹومیشن پر فوری کام شروع کیا جائے. نقصان میں جانے والے سرکاری اداروں کی نجکاری ہوگی. حکومتی بورڈ ممبران کے مراعات میں کمی کے لیے کمیٹی. پاور اور گیس سیکٹر کی اسمارٹ میٹرنگ پر متعلقہ لاہے عمل تیار کرنے کی ہدایت. کا اسمارٹ میٹرنگ سے لائن لاسز کا کم کرنے میں مدد ملے گی. مالیاتی درجے کے کاروبار کے لیے حکمت عملی تیار کریں. پنک کاروبار کے فروغ کے لیے اقدامات کریں تاکہ نوجوان کو مدد مل سکے. حکومتی حجم کم کیا جائے گا. ایسے ادارے جن کی ضرورت نہیں ہے انہیں ضم یا پھر بند کر دیا جائے. ایس آئی ایف سی معاشی استحکام کے لیے انتہائی اہم قدم ہے. اسے مزید مستحکم کیا جائے. آئندہ اجلاس ایف بی آر سے متعلق ہوگا. عوام کو سہولت دینے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کریں گے. کاروباری برادری سرمایہ کاری اور نوجوانوں کو سہولتیں دیں گے. شہباز شریف صدر عارف علوی سے حلف لے کر ملک کے 24ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. ایوانی صدر میں تقریب حلف برداری میں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور آرمی چیف بھی شریک ہوئے. کے پی کے علاوہ دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے امریکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ مفادات آگے بڑھانے کا خواہاں ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کے ساتھ درینہ شراکت داری ہے. مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے. خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکہ کے مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں. مریم نواز کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا پاکستانی سیاست میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. خواتین کے لیے ایسے اہم فیصلوں سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. شہباز شریف کو خود یقین نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. فیصل واڈے کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. سابق وفاقی وزیر نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اخلاقی طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہیں لینی چاہیے. شریف صاحب ان کو خود یقین نہیں کہ وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا. کیا یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے. ان کی بنتی بھی نہیں ہے. جو ذلت امیز اور عبرت ناک شکست کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں ان کو مورلی بھی نہیں لینی چاہیے اگر بنتی ہوتی بھی. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا سنی اتحاد کونسل خواتین اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مختص نہیں ہے. مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی. یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی. متناسب نمائندگی کے طے طریقے پر دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائے گی. ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا کہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی. پی ٹی آئی نے پورے الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. بیرسٹر علی ظفر کا سینیٹ میں خطاب. کہا الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ غیر آئینی ہے. اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. فیصلہ آنے تک سینیٹ اور صدارتی الیکشن نہیں ہو سکتے. مخصوص نشستوں کے بغیر یہ دونوں الیکشن غیر آئینی ہوں گے. الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل قومی اور صوبائی اسمبلی کے 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی. الیکشن کمیشن کی جانب سے ہولڈ کی گئی یہ نشستیں اب باقی جماعتوں کو ملیں گی. قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. ان میں پنجاب سے 12 اور خیبر پختونخوا سے 8 خواتین کی نشستیں شامل ہیں. اس طرح پنجاب اسمبلی میں بھی خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں متناسب نمائندگی کے تحت دیگر جماعتوں کو لاٹ کی جائیں گی. کے پی اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیتوں کی 4 نشستیں. سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 نشستیں بھی اب دیگر جماعتوں کو ملیں گی.
कराची में स्टेट बैंक ने पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का इनाकाद किया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आवाम के लिए इक्तिसादी आगाही से मुल्की मईशत को सहारा मिलेगा। तफसीलात कराची से अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में देखिए। स्टेट बैंक के हफ्ता पाकिस्तान लिटरेसी की इफ्तिताही तकरीब से स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने ऑनलाइन खिताब में कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मकसद अपने लोगों को मजबूत बनाना है, मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि तालीमी इदारों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर तवज्जो देनी होगी। I am happy that State Bank of Pakistan has been on the forefront in spreading financial literacy in the country. In collaboration with the banking industry and academia, we are proud of leading 2 iterations of the National Financial Literacy Program, one for adults and the other one for youngsters. वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैकवल डिचकमैन का कहना था कि गुर्बत के खात्मे के लिए माली रसाई जरूरी है। That requires some attention is also preparation for financial resilience. So by now, some 27% of the adult population in developing countries have access to emergency funds within 30 days in case they are hit by a shock. स्टेट बैंक में मुनक़दा एक्सीलेंस फाइनेंशियल लिटरेसी अवार्ड्स में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बैंकों के नुमाइंदों को अवार्ड्स दिए गए। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। मज़ीद आपको बताएंगे, बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तेकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम मारूफ सियाहती मकाम सेंट्रल स्टेशन के सामने किया गया। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्रसेल्स से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम बट अपनी इस रिपोर्ट में। किस लिए आप यहाँ पर जमा है? हम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और जो पाकिस्तान के रीसेंट इलेक्शन हुए हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सब मिल के काम करें, अपने जो अदारे हैं पाकिस्तान के उनको मजबूत बनाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो रैली निकाली है, इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारे दायरे मजबूत हों। पाकिस्तान मजबूत होगा, उसकी मईशत मजबूत होगी, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की और खुशहाल रहेगा। कराची के तलबा ने माहौलियात, साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद और जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसे देखकर बड़े दंग रह गए। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। मुस्तकबिल की बागदौड़ संभालने वाले बच्चे छोटी उम्र में ही नई दुनिया के चैलेंजेस को समझ चुके हैं। कराची के स्कूल में तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए माहौलियाती आलूदगी, ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तरतीब दी है। ये बात भी करता है हमारे से, जब हम इसको ब्लूटूथ से हम लोग इसकी वॉइस ओवर करते हैं तो ये रिप्लाई भी देता है कोडिंग के प्रोग्रामिंग में। घर की चीज़ें जो सस्टेनेबल हैं, हमने वो सारी चीज़ें यूज़ की हैं और केमिकल्स नहीं है इसमें, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। असातिज़ा का कहना था कि जो कुछ दरसगाह में पढ़ाया जाता है उसकी अमली मश्क इसी नुमाइश के जरिए की गई है। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, हाइड्रोलिक बेसिस के ऊपर है, रोबोटिक्स के बेसिस पे, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स कोडिंग से रिलेटेड है। जो वो नॉलेज यूजुअली क्लास में बुक्स के थ्रू लर्न करते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। बच्चों की नुमाइश में बड़ों ने भी जौक दर जौक शिरकत की। पाकिस्तानी तलबा के बासलाहियत होने में कोई दो राय नहीं। जब जहाँ जैसे मौका मिलता है वो ये बात साबित करके भी दिखाते हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़ कराची। और अमेरिका में इंतखाबात के पहले मरहले में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करने के लिए पाकिस्तान नयाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। ह्यूस्टन की फोर्ट बेंड काउंटी में होने वाली इंतखाबी मुहिम का हवाला जानते हैं गजनफर हाशमी की इस रिपोर्ट में। आजकल अमेरिका में मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए इंतखाबात के पहले मरहले प्राइमरी इलेक्शंस के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। 5 मार्च को होने वाले प्राइमरी इलेक्शंस के लिए अर्ली वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इन इंतखाबात में मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से नामजदगी हासिल करने के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। इन उम्मीदवारों में अहम नाम इब्राहिम जावेद, नबील शाइक, अली शेखानी, माइक खान, जीशान इसहाक, अब्दुल रहमान पटेल, डॉक्टर सुलेमान ललानी और दूसरे शामिल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस मरतबा बहुत जोशो खरोश के साथ बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है और अपनी पसंद के उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है। मैं डॉक्टर सुलेमान ललानी डेमोक्रेटिक टिकट पर हूँ। री-इलेक्ट सुलेमान ललानी। I have passed 36 bills in my first session. Let's continue the good work that we have started. My name is Ibrahim Javed. I'm running for County Commissioner in Precinct 3 of Fort Bend County. The turnout here today from the community has been great, but it needs to be better. We need more people to come out to vote. We have Election Day Tuesday, March 5th. We need more of our community to turn out. मेरा नाम अली शेखानी है। I'm running for Fort Bend County Constable Precinct 3 office. सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो आज हमारी पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी ने करा है,
हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। नाम नबील शाइक है और मैं आपकी फोर्ट बेन काउंटी प्रीसिंक्ट 3 काउंसिलर हूँ और मैं री इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ। We are out. आज आखिरी दिन है अर्ली वोटिंग के लिए। A very significant amount of our Pakistani brothers and sisters. इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोश खरोश पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि हजारों पाकिस्तानी आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत खुश आइंद बात है कि आज के हमारे बच्चे कल का हमारा फ्यूचर बिल्ड करेंगे। मैं एज ए फोर्ट बेन काउंटी कमिश्नर प्रीसिंक्ट 3 के लिए रन कर रहा हूँ। रिपब्लिकन पार्टी के बैलेट पे हूँ। नंबर 1 मेरा नाम पे स्टाइल पर है। मैं तमाम लोगों को यही कहूँगा, इस सिविक ड्यूटी का हिस्सा बने। हमेशा जब भी इलेक्शन हो, कम आउट एंड वोट। पहली दफा कमिश्नर का इलेक्शन रन कर रहा हूँ, जो 2021 से ये रेस माशाल्लाह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 साल जिस तरीके से मैंने वोटर्स और सबको देखा है, पाकिस्तानी वोटर्स भी बहुत तादाद में आ रहे हैं। अवेयरनेस बहुत हो गई है और हम चाहते हैं कि हमारे लोग ऊपर तक जाएं ताकि हमारी से हो। डेमोक्रेट्स की जानिब से सबसे दिलचस्प मुकाबला इस वक्त कमिश्नर की पोजीशन के लिए है, जिसमें पाकिस्तानी उम्मीदवार का मुकाबला भारतीय निजात उम्मीदवार के साथ है। गुज़नफर हाशमी, ARY न्यूज़, ह्यूस्टन, अमेरिका। लाहौर के एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान केमिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा केमिकल एक्सपो का आगाज हो गया है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान केमिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा केमिकल एक्सपो का आगाज हो गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए हैं। केमिकल एक्सपो के मुंतज़म मुअज़्ज़म रशीद पुर उम्मीद हैं कि इस एक्सपो में बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद की शिरकत मुतवक्को है। 60 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स के फॉरनर्स के बूथ हैं। 221 से 225 के करीब फॉरनर मुख्तलिफ मुल्कों से जो है पाकिस्तान में तशरीफ लाए हुए हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री अवेलेबल है। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आबिद शेरवानी कहते हैं कि इस एक्सपो से केमिकल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान के लीडिंग इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, एजुकेशनिस्ट आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए हैं। केमिकल एक्सपो 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी तलबा और स्कॉलर्स के लिए कोरिया में मुलाजमत के मौक़े की फरहमी का एक और संगे मिल उबूर हो गया है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के तहत कराची में दूसरी कोरियन कंप्यूटर लैब फॉल हो गई है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के तहत दूसरी CBT कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कोरियन सिफारती अमले और वफाकी सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस डॉक्टर अरशद महमूद ने किया। माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तानी स्किल वर्कर्स और तालिब इल्मों को कोरियन लैंग्वेज मुफ्त सिखाने के साथ साथ कोरिया में रोजगार के मौके भी हासिल होंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी टेस्टिंग लैब ही इधर ले आए, एस्टेब्लिश लैब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, उनकी लैंग्वेज स्किल सीधी कराएं, स्किल में डेवलपमेंट करें, उसके बाद उनको एक ऑर्डरली इमिग्रेशन के साथ हम बाहर भेजें। डायरेक्टर HRD कोरिया गून की सिंह के अलावा एस्टेवेटा सिंह के सरबराह और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद ने कोरियन टीम के हमरा CBT कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। हमारे जो बच्चे हैं 250 इंस्टीट्यूशन में, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, कि जहाँ पर वो कोरियन लैंग्वेज सीखें और उसके बाद वो, क्योंकि ऑलरेडी दे आर स्किल्ड। माहिर ने बताया कि CBT लैब अहम मंसूबा है जिसमें फिशिंग, ज़राअत समेत दीगर शोबाजात में पाकिस्तानी तलबा को कोरिया में मुलाजमत के वसीतर मौके हासिल होंगे। कैमरामैन मुस्तफा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। और चिन्यूट के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पे पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुस्तहिक अफराद की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर हक उनकी दलील पर पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा कहते हैं कि 10 रमजान मुबारक तक तमाम मुस्तहिकीन के घरों में राशन पहुंचा दिया जाएगा। कि जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत है कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर हम जो है उनका हक उनकी दहलीज पे पहुंचाएं। जिले हुकूमत के मुताबिक 1,06,514 मुस्तहिक घरानों में निगहबान रमजान स्कीम के तहत राशन पहुंचाया जाएगा, जिनमें 90% घरों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जो हमारे 1,06,514 बेनिफिशरीज हैं, उसमें से कोई 90% को फिजिकली जाके उनके एड्रेसेस को वेरीफाई किया आया कि वो बेनिफिशरी अपने जो गिवन एड्रेस पे मौजूद है या नहीं है। निगहबान रमजान स्कीम के तहत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने खुद घर घर जाकर राशन तकसीम किया। राशन हासिल करने वाले मुस्तहिकीन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने राशन घरों में पहुंचाकर एहतराम इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। और यहाँ पे बताएंगे, अमरीकी एफलेट इम्पोर्टमेंट नामी कंपनी SC बरकी कार्बनाही, जिसको सड़क पर आम गाड़ियों की तरह चलाने के साथ उड़ाया भी जा सकेगा।
اس برقی گاڑی کی بونٹ اور بوٹ میں پنکھے لگے ہوئے ہیں جو رش میں پھنسنے کی صورت میں ہوا میں اڑ کر گاڑی کو ٹریفک سے نکال سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔